Hello everyone, in this video we are going to discuss sources and schools of Muslim law. But before coming to the sources and schools of Muslim law, first of all we need to know who all are Muslims, right? So Muslim, actually Islam itself means submission to the will of God. इस्लाम का लिटरल मीनिंग ही यही होता है, submission to the will of God. So actually Muslims are the people who believes in this Islam faith. ठीक है, Muslims वो लोग हैं जो इस्लाम फेथ में बिलीव करते हैं, जो इस्लामिक पर्सनल लॉ में खुद को सबमिट कर चुके हैं. सो मुस्लिम पर्सनल लॉ जिन लोगों पर अप्लाई करता है, दोज आर कॉल्ड मुस्लिम्स. एंड बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ is applicable only on Muslims. एंड मुस्लिम्स कौन होंगे? जो इस्लाम फेथ में बिलीव करते हैं, राइट? सो इफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन मुस्लिम्स, दैट मीन्स ये जानना जरूरी है कि मुस्लिम्स कैसे बनते हैं. हाउ डज वन बिकम मुस्लिम? फर्स्ट इज बाय बर्थ. So if both the parents of the child are Muslim, then of course the child will be Muslim. अगर दोनों parents Muslims है तो child भी Muslim होगा, right? बट अगर एक पेरेंट भी मुस्लिम है तब भी चाइल्ड मुस्लिम माना जाएगा. हम इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं हु ऑल आर हिंदूज के कंटेक्स्ट में. अंडर सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वी हैव सीन दैट इफ वन पेरेंट इज अ हिंदू एंड द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज अ हिंदू, देन ओनली दैट चाइल्ड इज अ हिंदू, राइट? ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता. मुस्लिम्स में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट भी हिंदू है देन द चाइल्ड विल बी मुस्लिम. सो इफ बोथ parents are Muslims, then the child will be Muslim. And if one parent is a Muslim, then also child will be Muslim. So this is one way of acquiring Muslim faith, that the person himself is born as a Muslim. The other way is by conversion. एक पर्सन खुद को कन्वर्ट करके मुस्लिम फेथ अक्वायर कर सकता है, राइट? सो बाय कन्वर्जन. एंड फॉर कन्वर्जन द नेसेसरी सेरेमनी शुड बी अंडरगॉन. ठीक है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सेरेमनीज डिफाइंड है कन्वर्जन के लिए, वो सब सेरेमनीज हो जानी चाहिए. अगर वो फुलफिल हो गई हैं तो कन्वर्जन वैलिड हो जाता है. बट द कन्वर्जन मस्ट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिसिंग द फेथ. ठीक है, मुस्लिम पर्सनल फेथ में बिलीव होना चाहिए उस पर्सन का, तभी अगर वो कन्वर्जन करे तो वो वैलिड कन्वर्जन होगा. if the conversion has been done for some kind of ulterior motive or with some kind of malified intention, then that conversion is not valid conversion. So conversion must be for practicing faith, conversion for some ulterior motive is not considered valid. So for example, if there is a person, he has converted to Islam faith just to have multiple wives. ठीक है, उसको दूसरी बार शादी करनी थी, निकाह करना था, और इसके लिए उसने खुद को कन्वर्ट करा मुस्लिम फेथ में, then that conversion will not be valid if he has converted just for the sole purpose of marrying the other person. ठीक है, अगर उसका मोटिव सिर्फ ये था कि उसको निकाह करना है, एक दूसरी शादी करनी है, और उसके लिए उसने खुद को कन्वर्ट करा है, तो वो वैलिड कन्वर्जन नहीं होगा. ठीक है, बट इफ he believes in Islam faith and then he is converting, and
as a result he can marry some other person, तो वो valid होगा, but there must be some underlying belief in that context. ठीक है. Now in this regard there are two very famous cases, Sarla Mudgal versus Union of India and Lily Thomas versus Union of India. So in Lily Thomas versus Union of India, it was observed that if the conversion has been done just for the purpose of marrying another person, then that second marriage will not be considered as valid marriage. ठीक है. अगर conversion हुआ है just for the purpose of marrying another person, then that second marriage will not be considered as valid marriage. उसके लिए क्या करना होगा उस पर्सन को, ही हैज टू डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ फर्स्ट. ठीक है. पहले उसको अपनी जो फर्स्ट वाइफ है उसको डिवोर्स करना होगा. उसके बाद अगर वो कन्वर्ट करके सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड मानी जाएगी, बट अदरवाइज सेकेंड मैरिज वैलिड नहीं होगी. सो सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वॉज डिसाइडेड इन 1995 by the Supreme Court. So basically Sarla Mudgal versus Union of India made this observation, and then Lily Thomas versus Union of India was decided in 2000 by the Supreme Court, and it upheld the observation made in Sarla Mudgal case. Now one more question arises regarding conversion, and that is that what happens if one person converts from Islam to another faith? अगर किसी पर्सन ने इस्लाम से दूसरे फेथ में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अपोस्टेसी. सो इफेक्ट ऑफ अपोस्टेसी, like if a male converts, then his earlier marriage when he was Muslim and उसने जब कॉन्ट्रैक्ट करी होगी मैरिज, तो वो मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. सो इन केस ऑफ मेल देयर इज ऑटोमेटिक dissolution of marriage, and in case of female the marriage is not automatically dissolved. So this effect has been given under section 4 of the dissolution of Muslim Marriage Act of 1939. So अब अगर हम मुस्लिम फेथ की बात करें तो बेसिकली मुस्लिम्स में कास्ट डिवाइडेड नहीं है. इनफैक्ट अगर हिंदूज की हिस्ट्री उठाई जाए तो उससे पता लगता है दैट देयर इज अ रिजिड डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ठीक है. इनफैक्ट जो सरनेम्स होते हैं उसके बेसिस पर ही पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन किस कास्ट को बिलोंग करता है. ठीक है. बट मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है. मुस्लिम्स में कास्ट नहीं है डिवाइडेड. इंस्टेड देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स दैट हैव बीन डिवाइडेड अंडर मुस्लिम लॉ, और वो हिस्ट्री के बेसिस पर है. प्रॉफिट के कौन फॉलोअर्स थे कौन नहीं थे उसके बेसिस पर ये सेक्स डिवाइडेड है. ठीक है. सो बेसिकली उस टाइम पर ये जो सेक्स डिवाइड हुए थे ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से डिवाइड हुए थे, बट एक्चुअली जो मुस्लिम लॉ के डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है, रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग डिवोर्स, एवरीथिंग, वो सब जो लॉज हैं वो अकॉर्डिंगली इन सेक्स के अकॉर्डिंग बाइफोकेट हो गई, वो डिफरेंट मेथड से एप्लीकेबल होने लगे. सो बेसिकली ये जो सेक्स स्टार्ट हुए थे ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से हुए थे, बट अब हम जो भी मुस्लिम लॉ देखते हैं वो इन अलग अलग सेक्स के बेसिस पर ही देखते हैं, बिकॉज डिफरेंट लॉज हैं कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ. ओके, schools of Muslim law. First is Sunni. Sunni. Now among Sunnis as well there are different sects. First is Hanafi. In fact Hanafi sect की maximum population है इंडिया में. Then second is Maliki. Third is Shafi'i. And fourth is Hanbali. Second sect is Shia sect.
शिया सेक्ट में भी डिफरेंट सेक्ट्स और हैं डिवाइडेड, उन्हें देखते हैं एक बार. फर्स्ट इज इथना अशारी, second is Ismailiyas, and third is Zaydiyya. In fact, इतना अशारी में भी दो डिफरेंट स्कूल्स हैं. फर्स्ट इज अकबरी स्कूल. अकबरी स्कूल की मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया में और सुन्नी सेक्ट में हनाफी. सेकंड इज उसूली स्कूल. And there is one more sect, that is Motazilas. Motazilas, बट ये इंडिया में नहीं है. ठीक है, मोताजिला सेक्ट इंडिया में प्रेवलेंट नहीं है. सो प्लीज ये स्कूल्स की कैटेगराइजेशन याद रखना, बिकॉज इन स्कूल्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स में मुस्लिम लॉ को देखने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में. नाउ कमिंग टू सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. The first and the most prominent, in fact the most important source of Muslim law is Quran. So कुरान में बेसिकली रेवलेशंस हैं गॉड के डायरेक्टली, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मिले थे. सो डायरेक्टली गॉड के रेवलेशंस प्रॉफिट मोहम्मद को मिले थे और उनका ही कंपाइलेशन कुरान में गिवन है. इनफैक्ट इट वाज कंपाइल्ड बाय थर्ड कैलिफ उस्मान. सो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद को रेवलेशंस तो आ रहे थे बट उन्होंने कहीं पर भी कंपाइल नहीं करे थे उन रेवलेशंस को. वो रेवलेशंस उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताए और जो थर्ड कैलिफ था उनका उस्मान, उन्होंने उन सब रेवलेशंस को कंपाइल किया और उसको कुरान में कन्वर्ट किया. सो बेसिकली इट वाज कंपाइल्ड बाय उस्मान. ओके, सो दीज रेवलेशन were received by Prophet Muhammad for over a period of 23 years. 23 years तक प्रॉफिट मोहम्मद को ये रेवलेशंस आ रहे थे. ठीक है, एंड फिर उन सबको कंपाइल किया गया. सो कुरान इज बेसिकली नॉट जस्ट अ बुक बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ इटसेल्फ. ठीक है, इसमें सब कुछ गिवन है. इट इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इनफैक्ट इसमें लॉ वाला पार्ट तो बस एक छोटा सा सेक्ट है जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में बताया हुआ है. देयर आर वेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटीज एज वेल, जो कि कुरान में ही डिफाइंड है. उसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि एक पर्सन का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, प्लस रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए, नॉर्मल फिलोसफी रिलेटेड एस्पेक्ट्स कुरान में सब कुछ गिवन है. सो इट कंटेन्स अराउंड 6000 वर्सेस. out of which 200 are legal principles and out of these 200 legal principles only 80 deal with laws relating to marriage, divorce, एटसेट्रा. ठीक है, तो 80 लीगल प्रिंसिपल्स है जो एक्चुअली 80 वर्सेस है जो एक्चुअली डील कर रहे हैं लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एटसेट्रा. ठीक है, एंड द कुरान इज अनऑल्टरेबल ड्यू टू इट्स डिवाइन ओरिजिन. सो इट इज अनऑल्टरेबल ड्यू टू इट्स डिवाइन ओरिजिन एंड इसी वजह से इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ भी बोला जाता है. दैट इज वाई इट इज नोन
as primary source of Muslim law. So next source of Muslim law is Hadith or Sunnah. Second, Hadith or Sunnah is basically a compilation of traditions of the Prophet Muhammad. सो बेसिकली हदीथ में जो भी प्रॉफिट मोहम्मद जिन चीज़ों में खुद बिलीव करते थे, बेसिकली कुरान में तो रेवलेशंस थे जो उनको गॉड के थ्रू मिल रहे थे, राइट, बट हदीथ में वो ट्रेडिशंस इंक्लूडेड थे जो वो खुद बिलीव करते थे, जो वो खुद प्रैक्टिस करते थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, इनफैक्ट जो भी वो बोलते थे या जिन भी चीज़ों को वो अप्रूव करते थे या जो भी उनके एक्शंस थे वो सब हदीथ में इंक्लूडेड थे, एंड दैट ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. सो whatever was said, practiced, or approved during his lifetime is included in Hadith. Principles laid down by him are also there. So basically principles of Islam largely come from Hadith. Principles of Islam are dealt with in this source, and it is considered equal in authority to Quran. It is considered equal in authority to Quran. Then third source of Muslim law is ijma. बेसिकली इजमा में कंसेंसस और एग्रीमेंट गिवन है जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर जो उनके फॉलोअर्स थे उनमें अराइज हुआ था, ठीक है, फॉलोअर्स थे और इनफैक्ट जो ज्यूरिस्ट थे उस टाइम पर, जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर ही, लाइक व्हेन ही वाज इन एग्जिस्टेंस, उसी टाइम पर जिन एग्रीमेंट्स पर या जिन पॉइंट्स पर उन फॉलोअर्स ने अग्री किया था, उन ज्यूरिस्ट ने अग्री किया था आपस में, वो सब कंपाइल्ड है इजमा में, ठीक है. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ स्पेशली अमंग सुन्नीस. सो इट इज कंसेंसस और एग्रीमेंट of Islamic scholars on points of Islamic law. कुछ प्रेजेंट डे ज्यूरिस्ट का मानना है कि जो फर्स्ट जनरेशन के फॉलोअर्स थे उनमें कंसेंसस की बात हुई है इसमें, और कुछ ज्यूरिस्ट का ये मानना है कि जो थर्ड जनरेशन फॉलोअर्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के उनमें कंसेंसस की यहाँ पर बात हुई है. सो जो ओरिजिन है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, बट येस कुछ कुछ इस्लामिक लॉ के पॉइंट्स पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कंसेंसस हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉलोअर्स के उस टाइम के डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्ट में, वो सब इजमा में कंपाइल किए हुए हैं. देन द नेक्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज क्यास. So basically the rules under qiyas are deduced by analogy, by using reason, ठीक है. जो भी ये तीन important sources दे रखे हैं उन पर एक reason apply किया गया और in fact उन पर analogy apply करके जो reasoning deduce की गई वो सब qiyas में included है. So basically it is study of the principles given in the Quran and Hadith and applying the deduced analogy
to new situations. Qiyas is not a source of Muslim law for Shias. ठीक है, ये सिर्फ सुन्नीस के लिए है एक source of Muslim law, Shias के लिए नहीं है. Shias do not recognize it as a source of Muslim law. So basically Shias के लिए जो 3 primary sources of Muslim law है वो है कुरान, हदीथ and इजमा, and Sunnis के लिए है कुरान, हदीथ, इजमा and qiyas. Then there are secondary sources of Muslim law. These were all primary sources. ठीक है, अब secondary sources हैं. First, custom और उर्फ. कस्टम को उर्दू में उर्फ भी कहते हैं. सो कस्टम का मतलब तो सबको पता ही होगा, जो चीज़ कंटिन्यूटी में चल रही है, जिसकी एक बाइंडिंग फोर्स है सभी इंडिविजुअल्स पर जो उस सेक्ट में बिलोंग करते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस विच इज़ यूनिफॉर्म इन नेचर एंड कंटिन्यूअस इन नेचर एंड हैज़ अ बाइंडिंग फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्ट. ठीक है, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो of course उनके मन में एक deterrent effect होता है that they need to fulfill that particular practice, they need to abide by that particular practice. So that is custom. Second is legislations. We know that Muslim law is still largely uncodified, but कुछ aspects उसमें codify हो चुके हैं. For instance, the Dissolution of Muslim Marriage Act of 1939, then the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act of 2019. ठीक है, तो कुछ aspects codified है. वक्फ के context में जो laws हैं वो भी codified है. Marriage related कुछ aspects हैं codified, जैसे कि ट्रिपल तलाक recently जो unconstitutional हुआ था, उसके बाद वो जो criminalize हुआ है वो भी codified है वो aspect. ठीक है, but largely it is uncodified. So in this sense legislation also plays an important role. जितना aspect codified है उसके context में legislation होगा as a law follow. Then next is judicial precedents. So there are certain judicial precedents, there are certain judicial decisions which hold a grave importance under Muslim law. जैसे कि शाह बानो केस था, ठीक है, उसके बाद शायरा बानो केस था जिसमें ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ. देन नूर सबा खातून विच वाज रिगार्डिंग मेंटेनेंस. तो इस कंटेक्स्ट में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं उनकी एक प्रेसिडेंट वैल्यू होती है, उनकी एक बाइंडिंग फोर्स होती है एंड दे ऑल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ लॉ अंडर मुस्लिम लॉ. Then the last source of Muslim law is justice, equity and good conscience. So principles of public interest, principles of necessity के context में या फिर जहाँ पर justice, equity and good conscience के context पे कोई पर्टिकुलर लॉ लेड डाउन हो रहा है या फिर कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट डिसाइड हो रहा है, देन दैट विल आल्सो एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. क्योंकि सिर्फ मुस्लिम लॉ के कंटेक्स्ट में ही नहीं, इन जनरल भी justice, equity and good conscience act as an important source of any kind of law. ठीक है, natural justice principles में included होता है ये, और ये किसी भी law में एक important source of law माना जाता है. ठीक है, so this is all regarding sources and schools of Muslim law. Thank you.